Assalamu alaikum and very good morning to everyone. How are you? Hope you all are fine. Alhamdulillah, I'm also perfectly all right. Before starting our lecture, it is very important to share the syllabus with you. And in this term, we have two exams, first term exams and final exam. In first term exam, we have 6 chapter. Chapter number 1, from cells to organisms. Chapter number 2, classifying plants and animals. Chapter number 3, elements and compounds. Chapter number 4, mixture. Number 5, solution. Chapter number 6, the particle model of matter. Final term syllabus. Again, final term syllabus, and we have 6 units, 6 chapters. Chapter number 7, atoms, molecules, and non. Chapter number 8, simple chemical reaction. Number 9, energy resources. Chapter number 10, electrical circuits. 11, forces and their effects. Chapter 12, the solar system and beyond. Chapter number 1, from cells to organism. From cells to organism. It's the name of chapter, and we should know what is cell. Cell है क्या? यकीनन आप लोगों ने इन 6 क्लास एंड 5 क्लास में सेल के बारे में पढ़ा होगा. तो अब मैं आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू ये बताऊंगी कि व्हाट इज सेल. सेल होता क्या है. सेल की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, डिफरेंट बातें हैं जिसमें सेल को हम कहते हैं सेल की शेप है, साइंस है, इन्वेंशन है, एनिमल है, पाइपलाइन है, डेवलपमेंट है, डिलीवरी है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, एंड दीज टाइप ऑफ थिंग्स विच इज द पार्ट ऑफ और विच इज इंक्लूड इन सेल, जो कि ये सब की सब चीजें सेल में शामिल हो. आपके पास स्क्रीन पर एक बिल्डिंग की पिक्चर आ रही होगी. Look carefully at the picture. You will find that they are made up of many small plastic bricks. Different number of types of bricks are used to build a variety of houses. Each house can be broken down into single pieces of brick. Each brick is therefore a basic building blocks of a houses. Similarly, cells are the basic building blocks of living things. The living things around us, from the smallest bacterium to the largest animal of tree, are all made up of one or more than one cells. आपके सामने स्क्रीन पर एक पिक्चर आ रही है. इस पिक्चर को देखिए. ये डिफरेंट कलर ब्लॉक से बनी हुई एक बिल्डिंग है. इट्स अ मॉडल ऑफ बिल्डिंग. इट्स शो कि कोई भी चीज ब्लॉक, यहाँ पे ब्लॉक की इंपॉर्टेंस नहीं है. यहाँ पे इस चीज की है कि सेल से मिलके बने. एक सेल, 2, 3, 4, 5 सेल्स, चाहे कि वो एक छोटी सी प्लास्टिक ब्रिक या एक बड़ा सारा इंसान, एक प्लांट, कोई भी चीज मेड अप ऑफ सेल्स. हाँ, इसमें डेफिनेशन में ये डिफरेंस जरूर होता है कि कुछ चीजें, कुछ सेल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो यूनिसेलर, एक सेल से बनते हैं, और कुछ सेल्स, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मल्टीपल सेल्स से बनती हैं. My question is here, what is cell? Cell है क्या? In 6 class, I already science teacher आपको बता चुकी हैं कि सेल क्या चीज होती है. सेल है क्या? A cell is the basic unit of life. जिंदगी की जो बेसिक चीज है जिसपे लाइफ डिपेंड करती है, that is cell. वो है cell. It is smallest part of a living things which is capable to carry out basic life process. हमारी लाइफ का every living thing life process depend on the cell. हर जो भी जिंदा चीज है, चाहे वो एनिमल है, प्लांट है, ह्यूमन बीइंग है, फ्रॉग है, एलिफेंट है, एवरी लाइफ डिपेंड ऑन द सेल. सेल पे डिपेंड है. इज इट क्लियर?
Okay. Some living things such as bacteria and fungus. बैक्टीरिया का आपको पता है ना, हमें छोटी छोटी सी हाथ पे कभी बीमारियां निकल आती हैं इस तरह की, या पेट खराब हो जाता है और डॉक्टर आपको बताता है कि आपने कोई ऐसा फूड खा लिया जिसकी वजह से बैक्टीरिया आपके स्टमक पे चला गया और वहां प्रॉब्लम कर रहा है. ठीक है. बैक्टीरिया एंड फंगस आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. बैक्टीरिया और फंगस इसकी कुछ और एग्जाम्पल भी हैं. इस तरह के लिविंग थिंग्स हैं जो कि एक सेल से बने हुए हैं. ठीक है. डिपेंड ऑन और मेड ऑफ ओनली वन सेल. An organism or living things that is made up of one cell is called unicellular organism. जो एक सेल से बना हुआ लिविंग थिंग है, वो बैक्टीरिया हो या फंगस हो, उसे कहेंगे यूनिसेलर. क्या कहेंगे? व्हाट वी कॉल यूनिसेलर. एक सेल से बना हुआ लिविंग थिंग कॉल्ड यूनिसेलर. Each living thing in the picture is made up of only one cell. They can only be seen under the microscope. और ये इतने छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो कि just we can see under the microscope. हम इसे अपनी आम आंख से नहीं देख सकते. ये कौन से सेल्स होते हैं, ये कौन से लिविंग थिंग्स होते हैं जो कि यूनिसेलर होते हैं, जो एक सेल से बने होते हैं. ठीक है. These cells are living thing made up of only one cell. In the picture you can see amoeba है, bacteria है, algae है, fungus है. These all are the kinds of living things and these all are the kind of unicellular. ये unicellular है, एक सेल पे बने होते हैं, एक सेल से बने होते हैं. Is that clear? Okay. सेल की थ्योरी है क्या? Who discovered cell? First of all, you should know Robert Hooke discovered the cell. सेल की थ्योरी किसने डिस्कवर की थी? रॉबर्ट हुक. ठीक है. More than 300 years ago, a scientist Robert Hooke used a microscope to observe thin slice of cork. He found that the cork was made up of tiny boxes, which is called cells. रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट जो हैं, 300 साल पहले उन्होंने ये चीज डिस्कवर की कि उन्होंने एक कॉर्क का पीस देखा, मतलब कि लिया और देखा कि अंडर द माइक्रोस्कोप के नीचे कि वो बहुत सारे सेल्स को ज्वाइन करके सेल्स से बना हुआ है. तो उन्हें इस बात का पता चला कि कोई भी चीज जो है वो सेल्स के बगैर नहीं होगी. ही डिस्कवर द थ्योरी ऑफ द सेल. Living things such as plants and animals made up of many cells. Animals and plants also included living things and living things made up of cells. Few animals and made up of only one cell and rest of that made up of many cells. They are called multicellular organisms. जो एक सेल से ज्यादा सेल से बने हुए लिविंग थिंग्स होते हैं, जिनमें प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, उन्हें मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. वन सेल से यूनिसेलर एंड ज्यादा से मल्टीसेलर. लार्ज एनिमल such as elephant is made up of many more cells than the small animal like a frog. frog को देख लीजिए और एलिफेंट को देख लीजिए. ये इतना बड़ा है और वो इतना छोटा सा है, बट दे मेड अप ऑफ मल्टीसेलर. ये मल्टीसेलर से बने हुए हैं. ये इतने छोटे नहीं है कि उन्हें एक से बनाया जाए. फंगस, एल्गी, बैक्टीरिया, ये यूनिसेलर है. हाउ बीइंग आर द सेल्स. सेल्स होते क्या हैं, कैसे होते हैं? सेल्स की शक्ल के बारे में, शेप के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं कि वो लाइक किस तरह के हैं. To find out, observe the thickness of a strand of hair. हमारा जो एक बाल है, इसकी thickness को देखिए, इसके end को देखिए, ये किस किस्म का है. The largest human cell is terms of volume is an egg. अंडा देखा है जो इतना सारा है. अंडे का सेल जो है वो सबसे बड़ा सेल है, largest cell, which has a diameter similar to that of the strand of hair. Most other cells are about 10 times smaller. इससे 10 टाइम छोटे हैं बाकी सेल्स, जो कि एक अंडे का सेल, सेल्स में सबसे बड़ा जो सेल है वो अंडे का सेल, एग सेल.
राइट. As most cells are tiny, बाकी सब cells जो है वो बहुत छोटे छोटे. We have to observe them using a microscope, जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं. An ordinary microscope can make objects appear bigger up several hundred times through the use of lens. मतलब कि लेंस आपने देखा होगा कि लेंस यूज होते हैं हमारे आई ग्लासेस में. उससे हम छोटे से छोटे सेल को देख सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जो छोटी चीज होती है जो कि लेंसेज से भी नहीं नजर आती, just we can see under the microscope. The object of the observed is called the. What is cell theory? सेल की थ्योरी है क्या? वैसे तो मैं आपको बता सकती हूँ कि सेल की थ्योरी डिस्कवर किसने की? रॉबर्ट हुक ने 300 साल पहले, 300 years ago. Cell theory states that the cell is fundamental structure and functional unit of living matter. Elementary particle of organism in both plant and animals, and reorganize that some organisms are unicellular and other multicellular. This theory marked a great conceptual advance in biology and resulted is attention to the living process that go on in cell. इसमें आपके पास आ जाता है कि मल्टीसेलर और यूनिसेलर के साथ आपकी लिविंग थिंग्स में ये चीजें डिस्कवर होती हैं, दोनों की दोनों. एलिमेंट्स आ जाते हैं इसमें. एलिमेंट्स के छोटे छोटे से पार्टिकल जो कि प्लांट सेल में भी, प्लांट्स में भी हैं और एनिमल्स में भी. एनिमल्स में हम भी इंक्लूड हो जाते हैं. वही बात रिपीट हो रही है यूनिसेलर की और मल्टीसेलर की. इसकी डीप स्टडी जो हम करते हैं सेल से रिलेटेड, वो किस सब्जेक्ट में होती है? बायोलॉजी में. ठीक है. रिजल्ट्स इसके हमें सारे, मतलब कि हम माइक्रोस्कोप क्यों यूज कर रहे हैं, सेल की बात कर रहे हैं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ऑल अबाउट सेल थ्योरी में. देखिए आपके पास स्क्रीन पर आ रही होगी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, प्लाज्मा, पोटेशियम, प्लांट सिस्टम, रूट, स्टार्स, रूट, स्टेम्स, लीव्स, रिस्पायरेशन, ह्यूमन बॉडी सिस्टम. फिर आ जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम. दिस इज ऑल अबाउट सेल थ्योरी. ये सब की सब सेल थ्योरी की ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड डेफिनेशंस का पार्ट्स. अब हमारे पास न्यू चीज जो आई है वो है व्हाट इज माइक्रोस्कोप. हमने क्या पढ़ा है? सेल का यूनिसेलर, मल्टीसेलर और अब नहीं, सेल ऑफ थ्योरी, देन माइक्रोस्कोप. A microscope is a scientific instrument. It makes small objects look bigger. माइक्रोस्कोप एक इस तरह का साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, आला है, जिससे हम छोटी छोटी चीजों को बड़ा कर कर देख सकते हैं. ठीक है. When we join the school, इंशाल्लाह जब हम स्कूल ज्वाइन करेंगे, we will do the experiment. हम इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे कि इसके नीचे कौन से सेल्स हैं जो कि हम बड़े करके देख सकते हैं. माइक्रोस्कोप. ठीक है. This lets people see the small things. What is microscope and its type? माइक्रोस्कोप क्या है और इसके टाइप्स क्या है? माइक्रोस्कोप क्या है आपको भी बता दिया कि वो इंस्ट्रूमेंट्स जिससे हम छोटे छोटे जर्रे को बड़ा कर कर देख सकते हैं. इसकी टाइप्स में आ जाती हैं हमारे पास. देयर आर 3 मेन टाइप्स: ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. 3 है मेन, इसके अलावा भी हैं बट 3 आर मेन्स. कौन कौन सी? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. ठीक है. रिमेंबर द नेम्स. Optical microscopes bounce light up object to see, use lens or microscope to magnify the image. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स में क्या होता है कि लाइट बाउंस बैक होती है लेंस पर और यू कैन मैग्नीफाई सी द थिंग्स, स्मॉल थिंग्स इन अ लार्ज साइज. जब भी लाइट बाउंस बैक हो रही है, ये लाइट बाउंस बैक होकर हमारी आइज तक पहुंचती है और जिस ऑब्जेक्ट पे भी पड़ती है, देन वी कैन सी द थिंग्स. ठीक है ना. ये कॉन्सेप्ट आपके 6th क्लास में बहुत क्लियर करवाए. नेक्स्ट.
देखिए आपके पास स्क्रीन पे माइक्रोस्कोप की पिक्चर आ रही होगी। इसे मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करूंगी इस पिक्चर को, और आप लोग इसके नेम्स अच्छे से याद करेंगे, पढ़ेंगे कि विच पार्ट इज कॉल्ड डैश एंड डैश वॉट एवर जो, राइट। हमारे पास की पॉइंट्स हैं जो कि हमने अभी स्टडी किए हैं। अ सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। You remember the cell is the basic unit of life. It's very important. आपको सेल की वेरी शॉर्ट एंड 100% राइट जो डेफिनेशन है, अ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हर लिविंग थिंग्स की बेसिक यूनिट जिसपे लिविंग थिंग्स डिपेंड करते हैं, दैट इज सेल, वो सेल है। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ एटलीस्ट वन सेल। हर लिविंग थिंग कम से कम एक सेल से बना हुआ है, लेकिन मोर देन वन सेल से भी ज्यादा है। An organism which is made up of only one cell is called unicellular। जो एक सेल से बना हुआ लिविंग थिंग है, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, इन्हें यूनिसेलर कहते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स आपके सामने मैंने अभी अभी नाम ले लिए। एंड जो एक से ज्यादा बने हुए मल्टी सेलर कहेंगे, ओके। एन ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ मल्टी सेल मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टी सेलर, ठीक है। इसमें प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, हम सब है। अ माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू ऑब्जर्व सेल्स। सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए, सेल्स की स्टडी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे कहते हैं माइक्रोस्कोप। वी कैन सी द सेल जस्ट अंडर द माइक्रोस्कोप। सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही हम साइड पे रख के सेल्स को देख सकते हैं। अब आपके पास एक्टिविटी है। आई विल ऑल्सो शेयर दिस एक्टिविटी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। तो आप इसके लेबलिंग करेंगे। पहले जो पिक्चर शेयर की है उसके नेम्स याद करेंगे, देन लेबल करेंगे, ठीक है। इस पिक्चर से नेम्स याद करेंगे, देन उस पिक्चर को लेबल करेंगे। एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी नंबर 2 में आपके पास नीचे वर्ड बैंक दिया हुआ है। विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स यू विल ब्लैंक दिस, फिल दिस ब्लैंक्स, ठीक है। इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे, ये इजी है उससे। एंड द नेक्स्ट आपकी होमवर्क असाइनमेंट जो है वो ये है, डिफाइन सेल। सेल को डिफाइन करना है इन योर ओन वर्ड्स। द टॉपिक वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल। रिमेंबर व्हाट इज यूनिसेलर, माइक ऑफ कर दीजिए। व्हाट इज यूनिसेलर, यूनिसेलर क्या होते हैं। व्हाट आर मल्टीसेलर, मल्टीसेलर क्या होते हैं। व्हाट इज माइक्रोस्कोप, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का फंक्शन क्या है, माइक्रोस्कोप हम किस लिए यूज करते हैं, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। इज दैट क्लियर। ये आपकी होमवर्क असाइनमेंट है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अब आप अपना एक रजिस्टर या कॉपी बना लीजिए जिसपे आप ये असाइनमेंट करेंगे, बिकॉज जब हम स्कूल ज्वाइन करेंगे तो मुझे जो जो चीजें होमवर्क या असाइनमेंट या एक्टिविटी में आपको दे रही हूँ वो मुझे सब की सब एक फॉर्म में चाहिए। ऑल्दो आप मेरे साथ ये सारी चीजें व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करेंगे, मुझे दिखाएंगे, बट आई वांट इन अ फॉर्म ऑफ कॉपी। मुझे ये सब की सब चीजें आपकी कॉपी पे चाहिए, बिकॉज आई विल टीच यू साइंस। बी रेडी, बी प्रिपेयर फॉर इट, ओके।